آپ کو بتائیں کہ غازی گوٹ سکیم 33 کے فاطمہ ٹاور کے قریب پولیس کا مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کو چیپ ایمبولنس کے ذریعے عباسی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، تاہم ان ڈاکوؤں کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ بتاتے چلیں، غازی گوٹ سکیم 33 کے فاطمہ ٹاور کے قریب پولیس کا مقابلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کو چیپا ایمبولنس کے ذریعے عباسی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ در شہوار سے۔ جی یہ اسکیم 33 فاطمہ ٹاور کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، جس میں کہ چند دوستوں کا گروپ ایک جگہ بیٹھا تھا۔ ادھر یہ 2 ڈکیت آئے ہیں، انہوں نے ان سے تمام جتنی بھی موبائل فون تھے پیسے چھین کے یہ آگے گئے ہیں۔ جب نیکسٹ گروپ کی طرف یہ گئے ہیں تو جو پہلا گروپ تھا جن سے انہوں نے لوٹ مار کی تھی، ان میں سے ایک پولیس کا اہلکار تھا، اس نے موقع پر دیکھ کے ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی، جبکہ ان کی عمر 25 اور 30 سال بتائی جا رہی ہے۔ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کو چیپا ایمبولنس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ جی اچھا، در شہوار یہ بھی بتائیے گا کہ ڈاکوؤں کا تعلق کن شہروں سے بتایا جا رہا ہے؟ جی یہ تفتیشی عمل ابھی پولیس کی طرف سے جاری ہے، ابھی ان کی شناخت بھی نہیں ہوئی ہے، جیسے ہی چیزیں آئیں گی پولیس ہمیں انفارم کر دے گی۔ جی غازی گوٹ سکیم 33 کے فاطمہ ٹاور کے قریب پولیس کا مقابلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کو چیپ ایمبولنس کے ذریعے عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ در شہوار اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ریلوے مسافروں کے لیے خوشخبری۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کراچی سے پشاور جانے والی خان خوشحال ہٹک ایکسپریس کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ بتاتے چلیں، ریلوے مسافروں کے لیے خوشخبری۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کراچی سے پشاور جانے والی خان خوشحال ہٹک ایکسپریس کی بحالی کا اعلان کر دیا ہے۔ ریلوے مسافروں کے لیے خوشخبری ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کراچی سے پشاور جانے والی خان خوشحال ہٹک ایکسپریس کی بحالی کا اعلان کر دیا ہے۔ ریلوے مسافروں کے لیے خوشخبری۔ کراچی سے پشاور جانے والی خان ہٹک ایکسپریس کی بحالی کا اعلان کر دیا گیا۔ خان ہٹک ایکسپریس کا 5 سال بعد دوبارہ آغاز ہوگا۔ خان ہٹک ایکسپریس کو مارچ 2020 میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث بند کر دیا گیا تھا۔ اپریل 2025 کے آخر میں خان ہٹک ایکسپریس ایک بار پھر بحال کیا جائے گا۔ خوشحال ہٹک ایکسپریس پر چلنے والی منافع بخش ٹرین ہے، درمیان میں کئی اہم شہروں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ کراچی سٹی، کوٹری اور دیگر شہر اس میں شامل ہیں۔ ریلوے مسافروں کے لیے خوشخبری۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کراچی سے پشاور جانے والی خان خوشحال ہٹک ایکسپریس کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، میں کلاشنکوف نہیں، قلم دینے کے لیے آیا ہوں۔ نظر عباس کے اہل خانہ کو 80 گز کا پلاٹ دیا گیا۔ نظر حسین کے اہل خانہ کو ہر مہینے اخراجات کے لیے رقم دی جائے گی۔ نظر حسین کے 3 بچوں کے اگلے 12 سال تک تعلیمی اخراجات اٹھائے جائیں گے۔ گورنر سندھ کا ڈمپر حادثے میں جاں بحق لواحقین کو پلاٹ دینے کا اعلان۔ سیاسی جماعتیں اور ڈمپرز مافیا مجھ پر تنقید کر رہے ہیں۔ نعرے لگانے والوں نے ڈمپر حادثات میں کچلے جانے والوں کے لیے اب تک کیا کیا؟ اسمارٹ سٹی کے خضر بھائی کہہ رہے ہیں ہر مہینے ان بچیوں کو 5-5 ہزار روپے یہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ان بچیوں کے اسکول کے مسائل حل ہوں۔ ادھر آ جاؤ تم مہاجر، تمہاری وجہ سے لوگ جذبات میں نعرے لگا رہے ہیں۔ تم کیا بننا چاہ رہے ہو؟ مہاجر بنوں گا، مہاجر کے ساتھ کھڑا رہوں گا ہمیشہ، ہر ریلی میں جاتا ہوں۔ اچھا، یہ ہے سچا مہاجر۔ بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ میرے شہر کے لوگ کسی ایسے جذباتی نعرے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اپنا پیٹرول خرچ نہیں کریں گے جب تک کہ رہنے دو کوئی بات نہیں، سنیں گے جس کی جو بات ہے سنیں گے۔ اب آواز نہیں دبائیں گے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بھی بتائیں، اداوا کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن اب اس شہر کی سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے
जिन्होंने पहले भाइयों को भाई से लड़वाया, हजारों लोगों को शहीद करवाया और अब फिर नए फनकार और नए ड्रामों के साथ महाजिर कार्ड खेल रहे हैं। मुझसे बड़ा महाजिर है तो कोई दिखाए जिसने गवर्नर हाउस में 77 साल में पहली दफा महाजिर सकाफत, महाजिर कल्चर डे मनाया, लेकिन जबानी नहीं, अमली तौर पर। मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन मैं इस शहर का बेटा हूं, मैं अपनी इस पार्टी का हक परस्त गवर्नर हूं, इसलिए मेरे दिल में अपने इस भाई का ख्याल आया, दर्द आया। और इंशाअल्लाह ताला मेरे जितने ये नौजवान भाई खड़े, मायूसी नहीं करनी है। गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए, आओ आईटी में मैं तुम्हें एडमिशन देता हूं। जो यूसुफ गोड का आईडी कार्ड लाएगा उसे फ्री एडमिशन मिलेगा, बगैर टेस्ट के एडमिशन मिलेगा। आइंदा जो यूसुफ गोड की मोटरसाइकिल चोरी होगी, आओ आकर एप्लीकेशन दो, प्रायोरिटी पे सबसे पहले यूसुफ गोड वालों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। उसके बाद जिसको पढ़ना है, अगर वो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, ले आए अपना एडमिट कार्ड, उसको फ्री लैपटॉप देंगे। जो बच्चियां स्कूलों में पढ़ना चाहती हैं, उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, आए लेकर आए, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में फ्री एडमिशन दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मजाक नहीं हो रहा है राफे भाई, आप भले देर से आओ और मुस्कुराओ, हाँ, लेकिन दिल की बात कर रहा हूं मैं और दिल से बोल रहा हूं। अपने इन भाइयों के साथ, अपनी इस जमात के साथ, आपके साथ, आपके मसाइल हल करने के लिए खड़ा हूं। आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नर का डोमेन नहीं है। मैं ये पूछता हूं कि जिसका डोमेन है वो आए क्या? वो किधर है साला? अगर वो आ जाता है एक प्लॉट फाइल लेके कराची की, गुलशन इकबाल की, नॉर्थ नाजमाबाद की, डिफेंस की, जिनका डोमेन है वो डिफेंस की फाइल ले आए, मैं अपनी फाइल वापस ले लूँगा। कराची वालों के लिए एक और अच्छी खबर, मुतबादिल वसाइल की जानिब एक और अहम इकदाम। बायोगैस बनाने वाला पायलट प्रोजेक्ट कामयाब। किचन वेस्ट और गाय के ऑर्गेनिक वेस्ट से बनने वाली गैस को इस्तेमाल में लाया जाएगा। बताते चलें कि कराची वालों के लिए एक और अच्छी खबर है, मुतबादिल वसाइल की जानिब एक और अहम इकदाम किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुतबादिल वसाइल की जानिब एक और संगे मेल जो है वो अबूर हुआ है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर बायोगैस बनाने वाला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो गया है। किचन वेस्ट और गाय के ऑर्गेनिक वेस्ट से बनने वाले बायोगैस का जो है अब इस्तेमाल जो है वो शुरू होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आज इब्राहिम हैदरी प्लांट का जो है वो दौरा किया है और बायोगैस बनने के तमाम अमल का जो है वो जायजा लिया है। बायोगैस को मुतबादिल एनर्जी कुकिंग और हीटिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। मेयर कराची ने प्रोजेक्ट हुकाम से ब्रीफिंग ली है और काम को मजीद तेज करने की जो है हिदायत जारी कर दी हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में बायोगैस बनाने वाला ये पहला जो है वो पायलट प्रोजेक्ट होगा जो कामयाब जो है वो हो चुका है। किचन वेस्ट और गाय के ऑर्गेनिक वेस्ट से जो है बनने वाले बायोगैस का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। जी शुएब, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ स्टील मिल जुरंगी के करीब ट्रॉलर की टक्कर से 28 साला फरहान जाम बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम को जाए वकुआ से हिरासत में ले लिया था। ट्रॉलर ड्राइवर का कहना है कि मेरी गलती नहीं, लड़के रॉन्ग वे आ रहे थे। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं दुर्र शहबार। गुज़िश्ता रोज़ स्टील मिल में इंतहाई खौफनाक वाक़या एक पेश आया जिसमें कि ट्रॉलर की टक्कर से 28 साला फरहान वल सोहराब अली मौका पर जाँ बहक हो गया था। इस वक्त मेरे साथ मुलजिम मौजूद हैं, इससे मैं जानूंगी क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रफ़ीक। ये वाक़या किस तरह से हुआ, किस तरह उड़ाया तुमने उसको? मैं मैडम जा रहा था इधर पोर्ट कासिम पे, इधर से ठट्ठर रोड से ना पोर्ट कासिम पे जा रहा था। ये स्टील चौक नहीं है यहाँ पे, जरा रॉन्ग साइड पे आ रहा था वो
स्पीड में था, आगे गाड़ी में ठोक दिया उसने। तुम्हारी गाड़ी स्पीड में नहीं थी? नहीं मैडम, शाम का टाइम था, रास्ता में तीसरे चौथे गियर में जा रहा था आराम से। अच्छा, अगर वो गाड़ी उसकी बाइक स्पीड में थी तो वो बाइक में 2 बंदे थे, तो उन दोनों को तुम्हारे ट्रॉलर के आगे गिरना चाहिए था ना। उसमें से एक बंदा हलाक हो गया, दूसरा बंदा दूसरी तरफ गिरा, इसका मतलब है वो दोनों नॉर्मल स्पीड में थे, तुम्हारी स्पीड ज्यादा थी गाड़ी की। नहीं मैडम, मेरी बिल्कुल स्पीड नॉर्मल थी, मैं बिल्कुल शाम का टाइम था, रास्ता में आराम से बिल्कुल जा रहा था उधर। तुम्हें फिर क्या वो पब्लिक ने पकड़ा था वहाँ पे? ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ा? जी जी। कब से चला रहे हो ये तुम? मैडम मुझे 10-12 साल हो गए। और कितने बंदे हलाक हुए अब तक तुम्हारे हाथों से? एक भी नहीं हुआ। ये पहला वाकया है? उसके घर वालों की हालत पता है तुम्हें क्या है? उसके घर वालों के दिल पे क्या गुजर रही है? उसकी माँ की क्या हालत है? उसके भाइयों की क्या हालत है? मैडम मैंने जानबूझ के नहीं, खुद मेरे कौन सा उसके साथ की जाती है। तुमने एक बंदे को कत्ल कर दिया है और तुम कह रहे हो तुम्हारे साथ ज्यादती है? नहीं मैडम, मैं जा रहा था, अचानक हो गया, कोई अल्लाह तरफ से हो गया, मुझे क्या पता भाई, मैंने कौन सा जान के तो नहीं मारा मेरे को। ये अपनी बात पे कायम है कि इनकी गलती नहीं थी, गलती फरहान वल सोहराब अली की थी, जो कि ओवर स्पीडिंग की वजह से इनके ट्रॉलर के आगे आ गए थे। जी, तजावजात माफिया की शामत आ गई। केएमसी महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने 8 अप्रैल से शहर में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर ली। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान का कहना है कि जिला केमाड़ी, जनूबी और वस्ती से तजावजात का खात्मा किया जाएगा। रमजानुल मुबारक में भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि आइन से नावाकिफ वज़रा वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। केनालों के मामले पर CCI का इजलास जल्द मुतवक्के है और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये मनसूबा ख़त्म कर देंगे। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। कालाबाग डैम के बाद कनाल मंसूबा भी दफन हो गया। शर्जील मेमन ने 2 टोक कह दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया विंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वाजे किया कि पीपल्स पार्टी कनाल मंसूबे पर वफाक के साथ नहीं बल्कि अवाम के साथ खड़ी है। उनका कहना था कि कालाबाग डैम को जिस तरह दफन किया गया वैसे ही कनालों के मंसूबे का खात्मा भी पीपल्स पार्टी ही करेगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरीके से कालाबाग डैम के खिलाफ कमू शहीद पे धरना दिया था, और फिर ये बात कल चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीच में भी वाज़ेह की कि वो पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी। वो राजा परवेज अशरफ साहब भी थे जिन्होंने कालाबाग डैम को दफन करने के प्रोजेक्ट का ऐलान भी राजा परवेज अशरफ साहब ने किया था, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने किया था। शर्जील मेमन ने उस्मा बुखारी के बयान को अफसोसनाक करार दिया। बोले कि वजीर इत्तलात पंजाब का बयान वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल खड़े करने के मुतरादिफ है। अगर पंजाब हुकूमत को वफाक से मसला है तो उसे अपने घर में हल करे। हम इस इशू पर सियासत नहीं कर रहे, सिर्फ अवामी मौकिफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और समझदार आदमी इस तरह के फ्लोटिंग स्टेटमेंट नहीं देता। आप हर वक्त एक ही फ्रेम ऑफ माइंड में स्टेटमेंट नहीं दिया करें। आप पहले सोचें, फिर समझें, फिर अपनी राय दिया करें। और उससे सबसे पहले आपकी सोच कुछ भी हो सकती है, आपकी समझ कुछ हो सकती है, पहले कुछ पढ़ लिया करें। आईन पाकिस्तान पढ़ के फिर मैडम आप इस तरह के स्टेटमेंट दें। बगैर आइन पढ़ के आप स्टेटमेंट ना दें। और अगर आपके कोई इश्यूज हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो मेहरबानी करके वो अपने घर में सेटल करें। सीनियर सूबाई वजीर ने मुस्लिम लीग फंक्शनल को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इसी जमात ने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में कालाबाग डैम के हक में रैलियां निकाली थी। वफाक ने यकीन दहानी करवाई है कि जल्द CCI का इजलास बुलाया जाएगा ताकि मामले का हल निकाला जा सके। कैमरामैन मोहम्मद आरिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की ज़र सदारत मरकज़ी कमेटी और दीगर ज़िम्मेदारान का इजलास बहादराबाद मरकज़ पर हुआ। इजलास में आइंदा कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सदीकी ने तमाम ज़िम्मेदारान को कंटोनमेंट के इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत दे दी। इजलास में सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, सैयद अमीनुल हक, फुरकान अतीब, इलेक्शन सेल के अराकीन और अराकीन कौमी असम्बली भी मौजूद थे। जिन इलाकों में हुकूमत की जानिब से हल्का बंदी करके आबादी कम की गई, इस पर भी गौर किया गया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कंटोनमेंट के इलाकों में हल्का बंदियों के ऊपर काम को मुकम्मल किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में गैर कानूनी असलहा और मनशियात बरामदगी केस की समाअत हुई। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को पेश किया गया। पुलिस की जानिब से ताहाल केस का हतमी चालान जमा नहीं कराया गया। पुलिस ने चालान जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 10 अप्रैल तक केस का चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। कामरान कुरैशी अदालती रिमांड पर जेल में हैं।
वज़ीर आला सिंध की जानिब से SOS विलेजेस के सदर के एजाज़ में तकरीब। सिंध हुकूमत की जानिब से माली हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। सिंध में SOS चिल्ड्रन विलेजेस की जानिब से फराहम की जाने वाली 4 दिहाइयों की खदमात की मुनासबत से वज़ीर आला हाउस में तकरीब हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ज़ाती मसरूफियात के बायस शरीक न हो सके, ताहम सूबाई वज़ीर सईद गनी ने तकरीब में शिरकत की और वज़ीर आला का पैगाम पढ़ कर सुनाया। इस मौके पर सूबाई हुकूमत की जानिब से तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 437 मिलियन रुपए की मालियाती सपोर्ट के साथ कराची, खैरपुर और जामशोरों में ज़मीन की फराहमी का ऐलान किया गया। वज़ीर आला ने पैगाम में मुबारकबाद पेश की और सूबे में पसमानदा बच्चों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए तंजीम के मिशन के फ़रोग़ के लिए सूबाई हुकूमत की मुस्तकिल हिमायत का इआदा किया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर मुमलिकत को कोरोना वेरिएंट हो गया था। वो आइंदा 2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ गई। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि सदर मुमलिकत की तबीयत ईद से 1 रोज़ कबल ही ख़राब हो गई थी। कोरोना की तस्दीक पर बैरून मुल्क से अद्वियात मंगवाई गईं, जिनके इस्तेमाल से सदर आसिफ जरदारी की तबीयत संभल गई है। बाहर से दवाइयाँ मंगाई और उनको दवाइयाँ शुरू की गई और अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फ़िज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर हैं और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। डॉक्टर आसिम ने दावा किया कि मुल्क में कोरोना वेरिएंट मौजूद है। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में भी कोरोना के मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन ये इतनी ताकतवर नहीं है। उन्होंने बताया कि सदर मुमलिकत की मुलाकात पर मुकम्मल पाबंदी है, सिर्फ डॉक्टर्स मुलाकात करते हैं। ताहम आइंदा 2 रोज़ में सदर मुमलिकत घर मुंतकिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है, कोरोना पहले जैसा है नहीं, लेकिन कोरोना अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। इट्स नॉट इन दैट लीथल फॉर्म, लेकिन फिर भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर आसिम का कहना था कि अस्पताल से कोई भी वीडियो या तस्वीर जारी नहीं हुई है। जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई गई हैं। सदर ब्लड प्रेशर के आर्जे में भी मुब्तला हैं। उनकी बीमारी के बारे में अहले खाना आगाह है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, कराची।